देखिए, डिटेल तो अभी देखा नहीं है। जो ऊपरी तौर पे जो जजमेंट के बुलेट पॉइंट्स आए, तो ये क्या ही कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी। हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ़ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं। महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूज़न हुआ। हमारी इंक्लूज़न के बदले एक्सक्लूज़न को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, तो डिटेल देखते हैं और क्या कहें, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं है। लेकिन सर एसआई सवाल उठाती रही हैं, और पश्चिम बंगाल में भी जब हुआ तब भी वहां पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी अभी जो है, जो उस समय सत्ता में थी, उसने सवाल उठाया। अब तो पूरे देश में एसआईआर के नहीं, देखिए, आप अभी भी मूल सवाल नहीं देख पा रहे हैं। बंगाल में जो लाखों लोग येट टू बी क्लियर्ड, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही एक न्यायाधीश ने कहा था, इस बार नहीं तो अगली बार वोट दें। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की भी टिप्पणी आया करेगी। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सवाल होगा। मेरी चिंता उस बात से, इलेक्शन कमीशन के अधिकार में है या नहीं, इस पर तो सवाल ही नहीं था। सवाल था ये जो ब्लेटेंट एक्सक्लूजन का मामला है, उस पर अभी भी कुछ साफ नहीं दिखा। सर, लेकिन प्रक्रिया में खामी है और पूरे देश में ये प्रक्रिया होनी है, तो ये तो फिर जो विपक्ष की पार्टियां जो सवाल उठा रही है, एक चैलेंज तो है ही ना। फिर क्या कहा जाए, सर्वोच्च न्यायालय से आया है, एक बार विपक्ष की सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। हमारे देश की न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास है। हमें उम्मीद है कि उनके आदेश से वोटों में जो हेरा फेरी, वोटों की कटौती हो रही है बड़े पैमाने पर एसआईआर के माध्यम से, उसमें ऐसा नहीं होने पाएगा और सबको जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मतदान करने का, मत देने का जो अधिकार दिया है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। Judgment which has been delivered in the SIR matter, that is applicable in case of Bihar. That is not all India features. In this judgment, which I have heard, safeguard which had been provided by the Election Commission, that was sufficient, it has been held. But one interesting thing has been said, that if the Election Commission has no authority to decide who is citizen and who is not citizen, and if the Election Commission has deleted any name on the ground of the citizenship, then they should refer the matter to the appropriate authority under the Citizenship Act. And that appropriate authority will decide whether these gentlemen, these persons who are affected, they are citizen or non-citizen. If the appropriate authority hold that they are citizen, then their names should be included. Which we are saying for long, that the central government has no power, or police has no power to decide who is citizen and who is not citizen, and then thereafter push them back. That is not allowed by the Supreme Court today. Now, in Bengal case is completely different. Bengal case is logical discrepancy has been made, which has not even been decided in Bihar case. In Bengal case, only the logical discrepancy has been inserted by the Election Commission of India. Therefore, our case is completely different. Procedural part is also, there were so many procedural lapses were there. There the Supreme Court has given when the matter was heard, we have seen the Supreme Court has given the safeguard.
In case of an adjudication, Election Commission has not decided in our matter. The Supreme Court has said these matters would be decided by the members of the judiciary of the West Bengal and others. And thereafter, the appeal forum has been created by the Supreme Court to decide the appeal. That appeals are still in pending. Therefore, our case is completely different case. But in principle, the Supreme Court has held that the SIR is constitutional. But the procedural safeguard has been given by the Supreme Court. So many directions have been given. Unless I see the full judgment, I can't tell you what are the other safeguards have been given. Bihar judgment is not 100% applicable in Bengal case. Because it has been made very clear in this case. देखिए, जो हमारे वकील हैं या जो एप्लीकेंट हैं उनके वकील, उसको पढ़कर हमारे कानूनविद लोग उस पर समीक्षा करके ही बोलेंगे। बिना जजमेंट पढ़े बोलना उचित नहीं। मैं इतना जरूर कहूँगा, मुद्दा ये नहीं कि SIR इलेक्शन कमीशन करा सकता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो हम करवा ही चुके हैं SIR, लेकिन SIR होता था 4 साल में। ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयोग की तरफ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि देहात का मजदूर गरीब जाता है कमाने, लौट के साल भर में आता है, आपने 2 महीने का टाइम दे दिया कि आगे बताओ तुम जिंदा हो। सवाल ये, लाखों लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6000 लोग तो उनमें वैलिड मान लिए गए, और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो वैलिड हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा। और इसीलिए तो हमने राज्यसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाए, वहाँ विस्तार से बताएंगे इस पे चर्चा। जहाँ तक सवाल है जजमेंट का, हमारी नैतिक जीत हुई है कि उन क्वेश्चन पे, उन सवालों पे अभी भी खामोश है सरकार और न्यायपालिका। नहीं, SIR अवैध कब थी? SIR तो वैध थी। SIR का दुरुपयोग हो रहा है। SIR पहली बार नहीं हो रही है। SIR का जो दुरुपयोग हो रहा है कि आप वोटर लिस्ट को विलोपित कर करके और उसे आप अपील के अंदर पेंडिंग कर देते हो। बाद में अपील होगी, वो जीत जाता है और उसका वोट का अधिकार बहाल हो जाता है। तो आप बताइए, उसके बिना चुनाव हो गया तो वो चुनाव वैलिड रहेगा क्या? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब उत्तर प्रदेश में SIR हो गई। SIR के बाद सारी फाइनल लिस्ट आ गई। अब तो कोई वोट नहीं काटना चाहिए ना। जब आपने इतनी कवायद की तो अब कहें कि वोट काटेंगे आप? अभी इन्होंने फॉर्म, मुझे जानकारी है, इन्होंने फॉर्म तैयार करके रख रखे हैं। तो जो फर्जी फॉर्म 7 जमा होंगे उनके ऊपर आप वोट काट दोगे और उन्हें कह दोगे साहब अपील में चले जाओ और चुनाव निपटा दो। चुनाव के बाद अपील डिसाइड होती रहेगी। तो इतने लोगों को आप वोट से एक साथ बाहर कर दोगे। तो इसके अंदर यह प्रावधान भी होना चाहिए कि अगर आपको फेयर इलेक्शन कराना है तो प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी फॉर्म 7 अगर जमा कराएगा तो एफिडेविट पे जमा कराए, एफिडेविट दे, और अगर वो झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो। कानूनी तर्जा होना चाहिए। मतलब ये धींगा मस्ती जो देश में चल रही है ये बंद होनी चाहिए। हम इसके हक में हैं कि बिल्कुल 100% किसी विदेशी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, किसी घुसपैठिया का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब जब आप डेमोग्राफी चेंज करने के लिए घुसपैठिया बताते हो तो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बताइए, आप 12 साल में आप ढूंढ नहीं पाए। अब तो आपकी बंगाल में भी सरकार आ गई, तो बंगाल में से बताइए कितने करोड़ लोग आप निकाले आपने, क्योंकि डेमोग्राफी तो करोड़ में ही चेंज होगी ना। तो आप बताओ कितने करोड़ निकाले आपने, कितने डिटेंशन कैंप में डाले? सारे डिटेंशन कैंप आपके खाली पड़े हुए थे। ये जो नैरेटिव देश में बनाया जाता है झूठा और फर्जी, हम इसके खिलाफ है। और इलेक्शन कमीशन को इतनी ताकत अगर रखनी है तो फिर सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन ही देते सबके, बिना चुनाव के। फिर चुनाव के मायने क्या रह जाएंगे? विपक्ष तो पहले से ही कहता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का तोता है। हाँ, तोता है। तो क्या अब हाँ, तोता है। सुप्रीम कोर्ट भी? नहीं, बीजेपी का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR संवैधानिक नहीं है, तो हम भी कह रहे हैं SIR संवैधानिक नहीं है। भाई, उस दुरुपयोग के ऊपर एक्शन की बात कर रहे हैं हम तो। जो इतने भारी तादाद में आपने वोटों को मताधिकार से वंचित किया,
अब उनके अधिकार अगर बहाल हो जाते हैं तो आप बताइए चुनाव वैलिड है या अनवैलिड है? बस सिंपल बात है, एक ही लाइन की तो बात है। मैं कह रहा एक लाइन की तो बात है। अब उत्तर प्रदेश में SIR कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर वोट काटे जाएंगे तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा जो वोट काटेंगे? और अगर हमारे यहां कटेंगे वोट, बिल्कुल हम तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हम भी गुहार लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। आपने वोट काट दिया, फाइनल लिस्ट कर दी ना। अब इस फाइनल लिस्ट के लिए भी आपने तैयार कर ली। मेरे पास जानकारी है कि ये तैयार करके बैठे हैं और एंड टाइम पे फॉर्म 7 जमा करेंगे। अच्छा, अगर यूपीए सरकार SIR करती है तो वो वैलिड है आपके हिसाब से? 2003 में जब यूपीए सरकार ने SIR, अरे भाई मैं तो उत्तर प्रदेश की भी वैलिड मान रहा, अब भी कह रहा ये वैलिड है। बस ये जो SIR हुई है, इस SIR के बाद जो फॉर्म 7 जमा होने हैं, हम तो उसके लिए पहले से तैयारी करके बैठे हैं। ये फॉर्म 7 जमा कर करके हमारे वोट काटेंगे। देखिए, माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करते। माननीय न्यायालय के फैसले का पूरा सम्मान है, लेकिन वोट चोरी SIR के माध्यम से जो हो रहा है उस पर भी सब लोग हैरान हैं। धरातल पर जो स्थितियां हैं, हर जगह जन आक्रोश है। आम जनता से पूछिए, वो महंगाई से, बेरोजगारी से तंग आ चुकी है। इसके बाद भी वो सत्ता मशीनरी तंत्र से बीजेपी पा रही है, तो सवाल तो यही खड़ा होता है। और माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है, जो भी फैसला दिया है, उस पर कोई हमारी राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं हिटलर शाही, तानाशाही के खिलाफ, इस नकारा निकम्मी सरकार के खिलाफ, जिस सरकार ने आम लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है। आज किस तरह से गरीब परेशान हैं, किसान नौजवान परेशान हैं। तो जब इतना जनता का आक्रोश है तो फिर इन्हें सत्ता कैसे मिल रही, ये भी लोग सोच रहे हैं। तो इसलिए इस पर प्रतिक्रिया, तो अब जो लड़ाई है वो लड़ाई धरातल पर जनता की अदालत में लड़ी जा रही है, और लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। जब जब सत्ता बौराती है तब तब जनता उस सत्ता को उखाड़ फेंकती है, आगे आकर लड़ाई लड़ती है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर SIR से नाम डिलीट हो जाता है तो सिटीजनशिप एंड का मामला है। देखिए, बहुत सारे चीज़ों को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी पूरा इस पर अभी तो फैसला आया है। इस पर पूरी गहराई से इस पर हर बिंदु पर पहले रीड किया जाएगा इसको। इसके बाद पार्टी के तरफ से अपनी बात रखी जाएगी, इंडिया गठबंधन की तरफ से। अभी तो फैसला आया है, उन्होंने किन किन बिंदुओं को अंकित किया है, किन किन बातों को लेकर हम कोर्ट में गए थे, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। माननीय न्यायालय के फैसले पर क्या टिप्पणी की जा सकती है।